اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی ذہنی آزمائش کی طرف۔ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ جی یخادعون، علامت واو نون اور یا، ماشاءاللہ زبردست۔ تو یہی چیز ہے کہ علامتیں آپ اگر اچھی طرح سمجھ جائیں تو ترجمے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ یا وہ واو نون جمع، وہ اور خدعن دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دیں گے، صحیح ہے، لیکن چونکہ یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، دینا چاہتے ہیں، یعنی اپنی سوچ میں دے نہیں سکتے تو، لیکن اس کا اصل جو مطلب یہاں پہ بن رہا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، اور اس کا مطلب دوسرا جو لفظی حوالے سے ہم کر رہے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، دیں گے۔ اللہ کی ذات آ گئی، وا اور آ گیا الذین، وہ لوگ جو آمنو، وہ ایمان لائے، بہت خوب، وہ سب مرد ایمان لائے۔ علامت کون سی ہے یہاں پہ؟ واو الف، ماشاءاللہ، وا اور ما نہیں۔ اچھا، ماں کے جو مطلب ہے نا یہ ذہن نشین کر لیں، ماں کا مطلب جو بھی ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہو رہا ہے نہیں، جب اس کے بعد آپ کو الا کہیں نظر آ جائے نا تو سمجھ لیں اس کا مطلب نہیں ہے۔ وا اور ماں نہیں، یخدعون وہی آ گیا اس کے ساتھ ملتا جلتا، وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفس نفس کی جمع، اپنی ذاتیں، جانیں، ہم ان کی اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے علیہم السلام، وا اور ما نہیں، پھر نہیں کے مطلب میں آ گیا یشعرون، یہاں کون سی علامتیں ہیں؟ جی یا اور واو نون، زبردست، یا اور واو نون، وہ شعور رکھتے ہیں، رکھیں گے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جی سورۃ النور آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، اس کو ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے جو ہے نا اس کا کیجئے ذرا علامات کی مدد سے ترجمہ، اس کا مطلب کر لیں جی۔ سب سے پہلے الخبیثات، الف تا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب عورتیں، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ناپاک عورتیں، صحیح۔ اس کے بعد لی واسطے، صحیح ہے جی، اس کا آپ نے اردو کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا خبیثینا، یہاں کون سی علامت ہے؟ یا نون کی علامت ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے جی؟ جمع مذکر کے لیے، ناپاک مرد، سب ناپاک مرد، وا اور یہ بس ملتے جلتے الفاظ ہیں سارے، خبیثون، اس میں بھی جمع کی علامت آ گئی، جمع مذکر کی آ گئی، سب ناپاک مرد، پیچھے دیکھیے یا نون زبرنا، سب مرد، اور یہاں پہ وا نون زبرنا، سب مرد، دونوں علامتیں بتائی تھی، دونوں اس میں آ گئی۔ لی واسطے، وہی لفظ آ گیا، خبیثاتی، وہ دیکھیے شروع میں جو آیا ہے وہی آ گیا، الف اور تا دو پیش تن، یا الف اور تا یہ جمع کی علامت ہوا کرتی ہے اور مونس کے لیے ہوتی ہے، آ گیا وا اور، اب یہ آگے جو ہے الفاظ آ رہے ہیں، پچھلے جو الفاظ گزرے ان کی ضد کے طور پہ، متضاد کے طور پہ، الطیبات، پاک، وہ پاک، سب پاک خواتین، سب پاک عورتیں، کیونکہ الف اور تا لگا ہوا ہے، اور للطیبین، لی واسطے، اور طیبین سب پاک مرد، یا اور نون زبرنا لگا ہوا ہے جی، وا اور الطیبون سب پاک مرد، وہاں علامت کیا آئی؟ یا نون، اور یہاں کیا آگے جی؟ واو نون زبرنا، دونوں جمع کی علامت ہیں مذکر کے لیے۔ للطیباتی، لی واسطے، طیباتی سب پاک عورتیں، الف تا جو لگا ہوا ہے، اولائکا، جی وہ سب خالص عربی کا لفظ ہے، اس کو الگ سے یاد کر لیں، مبرعون، جی یہاں علامت کون سی ہے؟ واو نون، بہت خوب، واو نون علامت ہے، اور یہ علامت کس کی ہے؟ جمع مذکر کی، اور ذرا اس کو ہٹا کے دیکھیں لفظ کیا بچ گیا؟ مبرع، آزاد، بہت خوب،
ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मुबर्रा, अयूब से मुबर्रा। मुबर्राऊना सब बरी या आज़ाद मर्द, मिम्मा ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, मिन इसमें हरफ है और माँ फिर आ गया मौसूला जो के लिए, सही, मिन से माँ जो, ये याद रखें दोनों को मिलाया गया, मिन माँ से, मिन से माँ जो, यकूलूना, जी दो अलामतें आ गई इसमें, या और वाव नून, और इसको हटा के देखें या को और वाव नून को तो बच गया, कॉल, कॉल का लफ्ज़ ज़हन में आ गया। यकूलूना वो सब कहते हैं, कहेंगे, ला वासिते, लाम ज़ेर ली का मतलब भी वासिते है, और यहाँ पे लाम ज़बर ला का मतलब भी वासिते है, लाम ज़बर ला वासिते, और बाज़ जगहों पे ज़रूर के मतलब में भी होता है लाम ज़बर ला, यहाँ पे है वासिते। हुम उन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सही। मगफिरतुन मगफिरत, जी, और मगफिरत उर्दू में आप कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। मगफिरत की नज़र आती है बस इतनी सूरत, हम गुनाहों से पशेमान रहा करते हैं, यह भी मगफिरत की सूरत है, पशेमानी, जी। उसके बाद वाह फिर वही आ गया, और रिस्क, रिस्क और करीम, ठीक है जी, रिस्के करीम, करम वाला, बाबरकत भी, पाकीज़ा भी, सही हो गया जी। अब इसका हम बामुहावरा ज़रा तर्जुमा कर लेते हैं जी। पाक बास, जो आम इसका पहले एक तासुर है वो हम पहले तर्जुमा कर लें, उसके बाद उस बात की तरफ भी आ जाते हैं। तो इसका उस हिसाब से तर्जुमा देखिएगा कि खबीसात खबीसीन के लिए हैं, और खबीसून खबीसात के लिए हैं, और तय्यबात तय्यबीन के लिए हैं, और तय्यबून तय्यबात के लिए हैं, और वो उस बात से मुबर्रा हैं, आज़ाद हैं जो वो लोग उनके लिए कहते हैं, और उनके लिए मगफिरत और रिज़्क़े करीम है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना है, अपने महदूद वक्त के अंदर जितना हमारे पास वक्त है उसी हिसाब से देखिएगा कि आम तौर पे क्या है, ये आयत कब पढ़ते हैं हमारे मुआशरे में। ये बड़ी अहम बात आपसे मैंने गोशगुजार करना है आपके सामने, कब ये आयत पढ़ते हैं। अगर कोई अखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से मर्द गलत नज़र आया तो फिर क्या कहते हैं कि ऐसे ही है जी, ये गलत और इसकी जो बीवी है वो भी गलत, क्योंकि कुरान क्या कहता है कि बुरों के लिए बुरी बीवियां हैं, अच्छों के लिए अच्छी बीवियां हैं। इसी तरह दूसरी सूरत लगा लें, किसी खातून में ऐब देखा तो कहते हैं अल्लाह ने जोड़ियां बनाई हैं। अगर बीवी गलत है तो शोहर भी ऐसा ही होगा, अगर शोहर में ऐब देखा, शोहर गलत है तो बीवी भी ऐसी ही होगी, जबकि ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये मुकम्मल तौर पे ऐसी बात नहीं होती, ये कोई कानून कायदा नहीं है, क्योंकि कुरान की दीगर आयात को जब हम पढ़ते हैं तो इसके खिलाफ नजर आता है। वो कैसे? अब देखिए सूरत तहरीम में जिक्र हुआ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जो काफिरा थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी काफिरा थी, उनका जिक्र हुआ। तो अब होना तो ये चाहिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं उनके मुताबिक ही होती, तो कुरान ने बताया कि ऐसा नहीं है। और फिरौन की ज़ौजाए मोहतरमा का जिक्र हुआ, हजरत आसिया, वो साहिबा ईमान, तो इसका मतलब है ये कायदा जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत है कि कहना कि ऐसे ही होगा, ये नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुमकिन है कि दोनों एक तरह के हों और मुमकिन है कि दोनों में फ़र्क हो, यानी कोई कायदा कानून नहीं है। और यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि खबीसात का मतलब क्या है। तो अब तर्जुमा देखिएगा कि खबीसात ये जो है ना, कह लीजिए कि ख़वातीन के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये बातों और कलेमात के लिए आ रहा है। गुफ्तगू, बातें, बुरी बातें बुरे लोगों के लिए हैं, और बुरे लोग बुरी बातों के लिए हैं, और अच्छी बातें अच्छे लोगों के लिए हैं, पाक लोगों के लिए हैं, और अच्छे लोग
अच्छी बातों के लिए हैं, पाक लोग पाक बातों के लिए हैं, तो इसको पस मंजर में भी देखना चाहिए जी। अब आखिर में कलीदे तर्जुमा कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह इसका तीसरा एडिशन आ चुका है। सबसे पहला एडिशन कुरैशी ब्रदर्स लाहौर से शाये हुआ और फ़ी सबीलिल्लाह पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों तक पहुँचा। दूसरा इसका जो एडिशन है वो हई अलल फलाह मुल्तान वहाँ से शाये हुआ और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और लोगों तक पहुँचा। और अब इसका तीसरा एडिशन एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओकाड़ा, राय मुश्ताक रज़ा साहब ओकाड़ा की इल्मी दुनिया का मारूफ नाम है, उन्होंने इसको शाये करवाया है। और दारुल उलूम फैज़ान सैयदा कायनात इस्लामाबाद उन लोगों की काविश से शाये हुआ और इंशाअल्लाह ताला इसको भी फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम किया जाएगा। उसके बाद जी एक और किताब 90% कुरानी अल्फाज का बामुहावरा तर्जुमा सिखाने वाला निसाब रमज़े तर्जुमा कुरान, 15 रोज़ा तर्जुमा कुरान कोर्स, आसान तरीन और जदीद तरीन, ग्रामर के बगैर, बज़रिया उर्दू और अलामात। तो ये एक मेरी एक नई तसनीफ़ जो है वो इंशाल्लाह मंज़र आम पे आने वाली है। हासिल करने के लिए जो लोग सुन रहे हैं वो इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं 03415257 096। और रमज़े कुरान आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चल रहा है, इसको आप विज़िट करें, देखें। बहुत से इस पे प्रोग्राम्स कुरान करीम के हवाले से हैं, सीखने के हवाले से हैं। कुरान करीम का खुलासा जो है वो 8 घंटों में यहाँ पे मौजूद है और जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ये लेक्चर्स और दीगर इस पर मौजूद होते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का हमारा सिलसिला भी चलता है, उसके लिए भी राबिता कर सकते हैं 03415257 096। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए।